So let's move on. हमारी जो polynomials की worksheet हम कर रहे हैं, we'll continue with that. चलो, let's get started. Okay. Now question is, if p of x is x cube minus ax square plus bx plus 3, leaves the remainder minus 19 when divided by x plus 2 and remainder 17 when divided by x minus 2. You have to prove that a plus b is equal to 6. Okay. Now, in this case, this is very easy question है. इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है. What you have to do? First thing they have given, जब हम इस polynomial को x plus 2 से divide कर रहे हैं, that means x plus 2 is equal to 0. That means जो आपका x है, that comes out to be minus 2. Yes. अब इस वैल्यू को जब आप इस polynomial में आप पुट कर रहे हो तो यू आर गेटिंग minus 19 एज द रिमाइंडर. सो minus 2 का क्यूब minus a minus 2 का स्क्वायर प्लस b into minus 2 plus 3 is equal to minus 19. Yes. Yes, it is minus 19. तो इससे हमें ना एक इक्वेशन मिल जाएगी. तो इक्वेशन क्या होगी बेटा? We will solve this. तो ये minus 2 to the power 3 क्या होगा बेटा? It will be minus 8. ये 4 बन जाएगा, लेकिन it will be 4a minus b. Now we will take this 3 to the other side. So it will become minus 22. Yes, so this 8 will go to this side and it will become plus. So it is minus 4a minus 2b minus 22 plus 8. Yes. So this is, हम इसमें से minus 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं बेटा. तो यहाँ पे what I am left with, I am left with 2a plus b is equal to, यहाँ पे I'll be getting minus 14. Yes, minus cancel this 14 at 7. Okay, we'll leave this here. Okay. Now, so हमें इसी polynomial को minus 2 से I got 17 as the remainder. So 1 to 0, that means x is equal to 2 to the power b minus a to the power 2 plus 2b plus 3. Yes, plus 3 is equal to 70. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला है 7. Okay, minus 4a plus it will be, so ये subtract जाएगा. This 8 it will go to yes, this comes minus, yes, plus 2b is equal to 6. Now as you can see, I can take 2 common. Yes, 13 minus a plus b is equal to 3. So this is my equation 1 and yes, it was 2a plus b is equal to 7. Yes, as we say, this is minus b is equal to 3, b is 5, coming out to 5. Yes. So what will be? I'll just take it. It will be, देखो so 2 is equal to 7 plus b. 7 plus 5, that means so 2a is equal to 2. Therefore a is क्या is it out to be 6? Yes, it is 5 plus is equal to, yes. So yes, now this is the similar thing. Yes, मुझे attention. Okay बेटा. Let's do yes. बेटा. So x4 minus 4x plus 3x square minus s आपको दो में टाइम डिवीजन कैसे and the remainder is coming out. तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन जब फ्रेम अप होता है हमारा x is equal to now x 1 to the power 4 minus 2 into 1 to the power 3, yes, minus plus 3 into 1 का square minus a will be a plus b equal to 5. Okay. Similarly, second reduce equation. So जब when the given condition हम apply करते हैं तो first time जो है x minus 1 जब divide कर रहा है I am getting
5 as my remainder. Okay, so when I have solved the equation, the first equation, what I got is minus a plus b is equal to 3. Now in second case, the polynomial, given polynomial is being divided by x plus 1 and the remainder given is 19. So on solving this, this will be equal to 6. So a plus b is equal to 6.5. how? कैसे बेटा 6.5 कैसे आएगा बच्चे? It is coming out to be 13. Okay, so this becomes our second equation. Now what I'll do, I'll add up my both the equations. मैं यहाँ पे दोनों equations को add up कर देती हूँ. So minus a plus b minus a को क्या करें? is coming out to be 8. So 60, b is coming out to be 8. Now you would have 8. So this is the second equation because second equation में minus बनेगा b minus b. What is a? Yes, so a is coming out b minus a. So क्या होता है? My answer will be 5. तो a की वैल्यू जो है वो 5 है और b की वैल्यू जो है वो 8 है. क्लियर बेटा? So a is coming out to be 13 minus 8, which means it is equal to 5. Yes. Yes. So A की value is coming out to be 5 and B is coming out to be 8. अब I hope आपको इस type के questions बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, right? Anshu, Ashi, Parth, I hope everyone is clear with these type of questions and I don't think so कि अब आपको इसमें इतनी सी भी problem आएगी, right? चल, now we are going to do the factorization. We'll revise a little bit. Okay. Now you have to factorize the following trinomials. Now one by one you have to tell me. Parth, now you are able to see the equation beta. बिना मत बोलना. Sum is the middle one. It is okay. It is plus 9 plus 18 x square. Okay. Yes. अब हमें इसे करना है. We use this number. Okay. Into two such when we add those numbers, we are getting plus 9, and we are multiplying them, so we are getting 18x. So tell me, what numbers होंगे? 6 plus 3. Yes, 6 plus 3. Very good, Anshu. It is. हम ऐसे लिखेंगे बेटा x square plus 3x plus 18. जैसे हम ये चेक कर चुके हैं. Make a pairs. हम यहाँ पे pair first pair में what is the common x. Very good. Okay. Like x plus 6. Now next what thing is 3. Yes. So the answer is x. Very good. So answer coming out to be x plus 6 into x plus 3. Okay. Okay. So ये तो क्वेश्चन आप सबने पढ़ी थी. Okay. Anshu, good बेटा. चलिए. अब we will be doing the next question. अब I would like to ask Anshu. Anshu, you tell me what is sum in this and what is product in this. Yes, Sum is plus 17x. Yes. And product is 30x square. Yes. And what will be the sign of 30x square? Plus. Yes. तो ये साइन हमने नहीं भूलना है. ओके. अदरवाइज क्या होता है, वैसे तो चलो हम जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं फैक्टर्स बनाने में तो हमारी गलती नहीं होती. बट देखो बेटा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, व्हेनेवर यू आर डूइंग एन एग्जाम, एक अनवांटेड सा प्रेशर होता है दिमाग पे. हैव सर्टेन अनकॉन्शियस टेंशन इन योर माइंड. तो छोटी छोटी चीजें स्किप हो जाती हैं. तो आशी, आप 17x को किन दो टर्म्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो? यस बेटा. Yes, Anshu, you can tell beta. Yes. Ma'am, 15 plus 2. Yes, very good.
Very good, Anshu. It is 15 plus, so I will write as 2x plus 15x plus 5. Yes, is that correct? Now, part beta. Obviously, I have to make pairs. So first two terms में से what thing you are finding it to be common? 2x. Yes, it is 2x. Very good. I'm left with, here it will come as 3x plus 1. Okay. Next two terms, beta. Yes, beta. Next, yes, it will be, okay. I'm left with x plus b 3x plus 5. मैम Yes. ना मुझे वेक्टर कैसे निकालना मुझे ये नहीं समझ आ हाँ बेटा, ये आपने पूछा प्रोडक्ट होता है बेटा ये लास्ट टर्म जो बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं विदाउट एनी वेरिएबल प्लस जो हाईएस्ट पावर की टर्म होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाली टर्म को आपका ठीक है जो मिडिल में दो टर्म बच गई क्लियर कि कॉमन क्या है और लाइक सॉरी सम क्या है और and I will tell you that it is minus 12x square या plus 12x square प्लस yes तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेटा ये साइन लगाने से आप ये देखो मैम को कितने ये हो गए हैं अभी भी सम्स करते हुए लेकिन ये बहुत है फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स अब देखो इसमें आपको क्या ट्रिक लगेगी जैसे ही आप ये साइंस लिखते हो ना बेटा जब सम हमारा नेगेटिव में है और प्रोडक्ट पॉजिटिव में है इसमें पहले ही दिमाग में एक पिक्चर लगा लो कि मेरे दोनों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे अब क्यों होंगे वो नेगेटिव क्योंकि जब आप दो नेगेटिव टर्म्स को ऐड करते हो हमेशा नेगेटिव में आंसर आता है लेकिन जब आप उनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा यस माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है वो प्लस लेकिन जब आप माइनस माइनस को ऐड करते हो तब क्या होता है माइनस ही रहता है वो राइट अंशु नाउ यू कैन टेल मी बेटा इनके क्या फैक्टर्स होंगे बेटा यस बेटे मैम 3 and 4. yes should I write plus 3 plus 4 No ma'am, -3 -4. yes so it will be very good minus 3x minus 4x yes ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटे यस मैम ओके बेटा प्लस 1 ओके नाउ बन जाएगा और नेक्स्ट टू टर्म यस तो अब बेटा नेक्स्ट फॉर्म में आ रही है yes left with 4x plus 1 so 4x minus 1 अब जो नेक्स्ट है आपका इसी में ब्रैकेट यहाँ पर minus 4x plus 1 you will take the answer and give it x minus 1 okay clear so यहाँ पे मेरे फैक्टर्स अब क्या आप देखो ये सारे लेकिन स्प्लिटिंग मिडिल है तो देखिए बिल्कुल सिमिलर वो सेम है अगर सेम है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है अगर नहीं आई यू नीड टू चेक योर आंसर अगेन ओके सो मेरे जो आंसर है x मैम इसमें 4 पीछे लेकिन मैं तुमने कॉमन लेके यहाँ पे फोन ब्रैकेट है ये दो फैक्टर्स बनेगी सेम आंसर आप आने ठीक है आप रिलेट करके देखो अभी मुझे बताओ आपने की होगी शायद मैम कर ली ठीक आया आंसर वो आई कैन गेट दैट तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया दैट इज वेरी गुड आपने उसको रिशफल किया दैट इज अ वेरी गुड स्टेप ठीक है रिशफलिंग में कोई इशू नहीं है आप कर सकते हो बस सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि हमारी जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट लेफ्ट ओवर बचती है वो सेम आनी चाहिए ठीक है बेटा चलिए अब नेक्स्ट आशी विल टेल मी इन दिस इक्वेशन 2x square minus 7x minus 15 what is the sum and what is the product
मैम प्लस 7x सम में सम क्या है बेटा? मैम प्लस माइनस 7x ओके, एंड प्रोडक्ट इज मैम 30x स्क्वायर प्लस प्लस। यस पार्थ, क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस माइनस। ओके, यस, कैसे आया -15 इंटू 2? आशी, आप एक प्लस को मैम माइनस, -15 था। हाँ इसीलिए, ठीक है, क्लियर बेटा, इसमें कंफ्यूज ना। अब आपका जो सम है प्रोडक्ट में, इसका मतलब यू विल बी हैविंग टू नंबर्स, ओके, आउट ऑफ दैट द बिगर वन विल बी नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है। समझ गए? प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब हमारे पास ऑपोजिट साइन के नंबर होंगे। अब मुझे बताओ ये कैसे होगा? माइनस हाँ जी, क्या बोला? प्लस 3x माइनस 10x प्लस 3x माइनस वेरी गुड, 10x। वेरी गुड पार्थ। तो इट विल बी, देखो 2x स्क्वायर माइनस, यस बेटा, प्लस 2 -15 प्रोडक्ट तो आ गया बेटा, लेकिन अब हमको -13 आएगा, अमाउंट भी माइनस है। यस, यस अंशु, यस मैम। ओके। तो अब हमारी फर्स्ट टू टर्म्स में से आई एम गेटिंग 2x एज कॉमन, ओके, सो आई एम लेफ्ट विद x, okay, as the common, okay, therefore x minus, okay, so that means my into 2x plus 3. Yes. Who will be how is it? ये मैं उल्टा नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम उल्टा लिखा है। इक्वेशन को इससे वैल्यू करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट में हम इसको लिखेंगे कम आउट टू बी प्लस r minus 2 s, क्लियर हुआ? अब व्हाट इज प्रोडक्ट? यस बेटा, सम क्या है इसमें? माइनस r एंड प्लस 7। आप निकालिए, बताओ। यस, मैम सम जो है वो है -2r और प्रोडक्ट है अच्छा, ठीक है, यू हैव नॉट 84। रिड्यूस्ड, ओके बेटा, व्हाट आई हैव डन पार्ट, आपने जो किया वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन जस्ट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई माय इक्वेशन, मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन में से -2 कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। तो जब मैंने कॉमन ले लिया, आई एम गेटिंग r स्क्वायर प्लस r माइनस 42, ठीक है, तो इसमें सम जो है वो बन रहा है +1r, ठीक है बेटा, और प्रोडक्ट मेरा बन रहा है -42r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस केस में 6 7 इज 42। अब सम मेरा प्लस में है, इसका मतलब दिस विल बी +7 माइनस माइनस r, yes, so first one is coming out to be r, okay, so there is r plus, okay, इसमें से r r plus, okay, 2 r plus, चलिए, now the next polynomial या trinomial is 7x square minus 10x minus 4. Yes. Parth, you tell me beta, what is sum and what is product? x square is sum and product is no. Then Ma'am 10x is equal sum and 28 माइनस 10 yes, I was waiting for the sign.
it is to be minus 10x, okay, and here it will come out to be minus 28x square. Yes बेटा, नाउ टेल मी. अब देखो सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, तो अंशु आपके दोनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव होने चाहिए या नहीं? यस मैम. क्या बनेगा? Yes, think. Okay, we will leave this question as we need to check the question. Okay, I will. मैं इसको चेक करूंगी तभी we will do, क्योंकि ऐसा नंबर नहीं कोई बन रहा, और अगर आप इसको एक और फॉर्मूला से करते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आ रहा है. ठीक है, तो नेवर माइंड. So now we will factorize y square minus 5y plus 6. Yes बेटा. Yes बेटा. Now the next आपकी जो ट्राइनोमियल है वो ये है. ठीक है आशी, अब आप बताओ बेटा, what is the sum and what is the product? Yes बेटा. मैम -5y Very good. सम है Yes. और मैम +6y स्क्वायर प्रोडक्ट. Yes, बिल्कुल. Very good. अब पार्ट मुझे बताएगा बेटा, क्या हम नंबर्स लें? अब आप ये देखो, सिंपल सी बात है, आपका अगर प्रोडक्ट प्लस में है और सम नेगेटिव में है तो इसका मतलब है दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव में होंगे, राइट? तो हम कैसे तोड़ें बेटा पार्ट, बताओ बच्चे, इसको कैसे ब्रेक डाउन? यस. हाँ, बट इसमें y नहीं, हमने x नहीं लिखना, वी हैव टू राइट डाउन y. ओके, यस. हाँ, तो इट विल बी, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा. इट इज y minus b minus x and left and y minus and y -3 yes, y minus 3, y minus 3, y y minus 3 and y minus 2. अब बेटा this is really interesting. Factorize that. हम उसमें splitting का मतलब करके we will be getting 2. ठीक है, चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सम क्या है? -1x plus 2. yes. जब आपने इसमें लेना है और इसमें से लेना है तो मिल रहा है x and x minus points because I want to नहीं बने. ओके, that means क्या है? minus into x. ये तो आपकी मतलब हम यहाँ पे मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे कर इक्वल टू प्लस b. ओके, तो ये 0 है. यस, सामने a प्लस b इक्वल टू माइनस b. क्लियर हुआ बेटा? यस, हम पहले अब सेकंड नाउ टू मैं चलिए यहाँ से मैं सुधार रहा हूँ. इट इज गिवन टू बी अ फैक्टर. तो ये क्या बनेगा बेटा? 60 प्लस b माइनस माइनस क्या होगा? सारे साइन जो है बेटा माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस व्हाट विल हैपन? द अनकमिंग. सो आई एम गेटिंग वी हैव गॉट आंसर. यस, आई एम गेटिंग इक्वल टू माइनस and equal to now we will calculate the value of b. So b is equal to -1 plus b minus plus. So b है. So we got. Yes. Okay. So the value of a is coming 5 and b is 4. Yes, here बेटा.